ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮੈ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਉਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁਝਿਆ, ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਨਰ ਤੇ ਮਾਦਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੇ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰੀ। ਦੂਜੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੋਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਗਨ ਮਟਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਮਾਸ ਦੇ ਲੋਥੜੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਸ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਟੀ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾਤ। ਜਬ ਉੱਠੀ ਚਲਸੀ ਕੰਤੜਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਬ ਲਗ ਜੋਤ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਵਰਤੈ, ਆਪਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਬੂਝੈ। ਲਾਲਚ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨ, ਲੋਚਨ ਕਛੂ ਨਾ ਸੂਝੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੁਹੱਪਣ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਜੋਤ ਨਾ ਹੋਈ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ।
जाग ले रे मना जाग ले, कहाँ गाफिल सोया। जो तन उपजिया संग ही, सो भी संग न होया। मात पिता सुत जन बंध जन, मात पिता सुत बंध जन, हित जास्यों कीना। जियो छुट्यो जब देते, डार अगन में दीना। 2 दिन भी घर रखना औखा हो जाता है। जिन्ना चर रब्बी जोत है, इहदा खर्चा बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा खर्चा है। जदों रब्बी जोत रब्बी ताकत विचों निकल जाए तो याद रखियो उदों 4 दिन डेड बॉडी संभालनी पै जाए तो किते वधीक खर्चा है। सहवागते ने कहते भलिया मैं तेनू चेता करवाना चाहना है, आपे ही करना कि वो कल आपे ही ते धारी है। देखे कीता अपना धर कच्ची पक्की सारी है, जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है। अगली पंक्ति, जिसके जीव प्राण है, क्यों साहिब मनो बसारी है। अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी। जिन्हें जोत रखी उस तो बिना कोई रख भी नहीं सकता। जिन्हें तेरे अंदर जोत टका के तेनों उस तो बिना तेरा कोई मुल भी नहीं पैना, तो उसे नूं भुलाई रखता बंदा सारी जिंदगी। दुख की गल यह है, जी तो बिना इसका कोई जीवन नहीं, तो उसे नूं सारी जिंदगी भुलाई रखता, उसे नूं पिसारी रखता। एक गुरदेव का बचन बड़ा प्यारा है, वो कह के आप अगे तुरांगे गल। सतगुरु जी की बाणी विच बहुत थावां ते संवाद करके गल समझाई हुई है। संवाद मतलब एक दूजे विच विचार चर्चा, क्योंकि मनुखी सुभाव है ये गलबात करना, ये राही सौखा समझ लेंदा है। साहब कहते एक बारी मैं गलबात करदियां सुनिया, आ जिहड़ी देही है ये पत्नी बन के ते जिहड़ा इहदे च रब्बी अंश है वो पति बन के गल्लां कर रहे सी। आ जिहड़ी देही रूप पत्नी है ये अंदर वसदे रब्बी अंश नूं कहण लगी भी तू एक गल दस, मैं किहड़ी कसर छड्डदी है तैनूं प्यार करन च, किन्ना प्यार करनी है तैनूं, पर मैं हैरान है तेरे तो, तू छड्ड के किवें चला जाना मैनूं, तू छड्ड के ना जाया कर। पति कहन लग्या भी भलीए रहिंदे तां आपां इकट्ठे हैं, पर मैं रहिंदा किसे दे हुक्म नाल है। रहिंदे आपां इकट्ठे हैं पर मैं रहिंदा किसे दे हुक्म नाल है। वो कहंदी तू उहदे हुक्म की परवाह ना कर, तू मेरे नाल होवें, तू देखता सही मैं किड्डे किड्डे लोकां नूं अपने वालों हंकारियां चुक चुक के सुट दियांगी। वो कहन लग्या नहीं भलीए तेनों उहदे हुक्म तो बाकी नहीं होया जाना, वो बहुत वड्डा है, उन्होंने किसी की परवाह नहीं। हुण पति ने तो गल्लां सच दियां कह दित्तियां, पर पत्नी ने समझिया नहीं। उन्हें आख्या मैं प्यार के जाल च फसा लांगी, नहीं जान दियांगी। होया कि भी एक दिन आगे आई तो पति उठ के चला गया, पिछे आ मिट्टी का भड़ोला खाली रह गया। सतगुर की बाणी च बचन ने बड़े प्यारे, धन कहे, धन मतलब स्त्री, धन कहे तू बस मैं नाले, प्रिय सुख बासी बाल गोपाले, तुझ बिना हो किट ही ना लेखै, बचन दे छोड़ न जासा ही। फिर कहया हाँ हुक्मी बंदा, ओ भारो ठाकुर जिस कान न छंदा, जिचर रखै तिचर तुम संग रहना, जा सदे ता ऊट सदासा ही। जो प्रिय बचन कही तन साचे, धन कछु न समझे चंचल काचे, बहुर बहुर पिर ही संग मांगे, ओ बात जाने कर हासा ही। आई आगया पिरे बुलाया, ना तन पुछी ना मता पकाया, ऊट सधारियो छूटर माटी, देख नानक
मिथन मुहासा के। कहते बंदे काहदा हंकार करना है, जै सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवारे काग। इस तन धन का क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दरड़ैया। कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही हवाल होएंगे तेरे। सारा कुछ उस रब्बी जोत करके है, तेरे करके कुछ भी नहीं है। मत सोची दुनिया में कोई ऐसा होगा वैदा संधा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास बिच आप खलोया। तां तेरी जीवन की डोरी बदनी जे उन्हें कृपा कर दी, जे उन्हें रहमत कर दी। वो लेखे च ना रवी, तेरे अंदर जोत रखी है। कुछ गल्लां अज दे शब्द नाल संबंधित होर ने ते फिर आपां विचार करनी उहदे लई लोड़ींदी है। दुनिया के अंदर जिहड़े लोग ने ना, उन्हां दी सोच सिर्फ जात तक खलोती है, वो जोत तक नहीं पहुँच पाते। गुरमत ने सानू जोत का पल्ला पकड़ाया। रब नूं कहा भी रब जोत है, गुरु नूं कहा भी गुरु जोत है, सानू कहा भी तुहाडे विच जोत है रब दी। पर बंदा जोत की पहचान नहीं करता, जात दी करता है। तो सतगुरु ने कृपा की, जात दियां वंडियां के कारण तुसीं देखो कदे विपरवादी सोच ने एक एक गल वंड के रख दी, एक एक गल वंड के रख दी। गुरु ने सारियां गल्लां छड्ड के फिर इकट्ठा कर दिता। कह लगे जोत नूं देखेगा सारी दुनिया तेनों अपनी नज़र आएगी, जात नूं वेखेगा सारे वक्खो वक्खरे नज़र आउणगे। जोत नूं वेखिया एक नाल रिश्ता बन जाएगा, फिर कहेगा एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। फिर एक नज़र आउणगे सारे, फिर वखरेवा नहीं होवेगा। बड़ी वड्डी चोट सी उस वेले दे समाज उत्ते, जिहड़ा जात बरादरियां के नाम से जू रहा सी, उन्होंने जोत के नाम से पहचान करवानी। मैं बहुत बारी बेनती करना है, एक कौम इहो जी है सब का भला मंगती है, एक कौम इहो जी है सब नूं गलवकड़ी च लैंदी है, एक कौम इहो जी गरीब अमीर का पवित्रा नहीं करती। सारा कुछ हो जाने के बावजूद भी फिर भी ये पवित्र ग्रंथ के जिहड़ी समुचे जगत नूं असीसां देंदी है, फिर भी ये पन्ने क्यों पाड़े जाते हैं। ये मैं बहुत बारी अर्ज करना है, उसका कारण सिर्फ इको ही है, क्योंकि जिन्नी भी विपरवादी सोच है उहदे ते एक एक गल ते टका के सतगुरु जी ने टकोर की हुई है। उन्हें बड़ी वड्डी टकोर है। गुरमत जिहड़ी है वो जोत नूं देख के पंगत विच भी इकट्ठे कर दिंदी है ते संगत विच भी इकट्ठे कर दिंदी, वखरेवा नहीं रहन दिंदी। गुरु ग्रंथ साहिब विच किसी नूं जात के नाम से बाणी लिखण का मौका नहीं मिलिया, जोत के नाम से सारे इकट्ठे होए। पंजा प्यारियां की चोण जात के नाम से नहीं हुई, पंजा प्यारियां की चोण जोत के नाम से हुई है। तो अज सच्चे पातशाह ने एक गल मैनूं और चेते आ गई, रखनी नहीं चाहता दिल च। ख्याल करियो, जदों 1674 सन विच शिवाजी मराठा उदों महाराष्ट्र के इलाके में जिहड़ा अजोका है उधर इलाके नूं जित के वो राजा बनिया, तख्त ते बैठना सी। ब्राह्मण ने उन्होंने आग्ञा नहीं दी भी तू बैठ नहीं सकता क्योंकि तू छतरी नहीं है। उन्होंने को होर कोई बंदा काबल भी नहीं सी। कह लगे फिर किमें हो सकता है। उन्हें उस वेले उन्होंने समय 50 लाख रुपये का 11,000 ब्राह्मणों नूं लगातार 4 महीने भोजन छकाया, तो उन्हें आग्ञा दी भी हुण तू तख्त ते बैठ सकना। अज भी तुसीं देखो जिन्नी भी सोच है वो विपर दे दुआले घूमती है। गुरु जी ने बड़ी वड्डी दात बख्शी है। इस शब्दों में साहब कहते ने मना
ये शरीरा मेरे आ, ये मेरे शरीर अज मैं तेरे नाल गल करनी चाहना है। हर तुम में जोत रखी, तेरे विच जोत रखी है। जोत करके तेरा जीवन है, शरीर करके जीवन नहीं है। मत सोचो शरीर ते भावें किसी का किड्डा ही अमीर घराने च पलिया होवे। साहब ने बड़ी प्यारी विचार बख्शी है। जोआ चंदन मर्दन अंगा, अखीर च सारे नाल की हुंदा है, अमीरे ते नहीं कहना भी मेरी वाली अग कोई वखरी बालो, अमीरे ते नहीं ना कहता भी मेरे संस्कार कोई वखरा करो। हाँ असी बाहरी दिखावे दियां चीज़ां वखरियां कर सकने, बॉक्स भी वखरा हो सकता है, पर अग इको जिही है प्यारे हो। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ के संगा। कबीर गर्भ न कीजिए चाम पलेटे हाड, हैबर उपर छतर तरते फुन धरनी गाड़। जिन्हां दे नाल तुरियां नगारे बजदे ने, जिन्हां दे नाल तुरियां छतर चलदे ने, एक दिन वो भी इस धरती की कुख विच समा गए। ये शरीरा मेरे आ, हर तुम में जोत रखी, तां तू जग में आया। जग विच तू तां आया, नहीं जग विच आउण नहीं सी देना। जे जन्म समय ही मौत हो जाए तो दुनिया च थोड़ा कोई आउण देंदा है, फिर संसार उदों ही कहानी खत्म कर देंदा है भी इहदा संस्कार कर दिओ, इहदी मिट्टी नूं साਂਭ दिओ। जेड़े मालिक की किरपा नाल तेरी सारी रिश्तेदारी है तो उसे नूं भुल्ली बैठा है, उसे नूं विसारी बैठा है। ये शरीरा मेरे हर तुम में जोत रखी, तां तू जग में आया। हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग में आया। तेरे विच रब ने जोत रखी है कि तां ही तू दुनिया च आया है। एक शब्द वल होर अज अपना ध्यान दिओ। बंदा अक्सर कह दिंदा कई बारी भई जे तुहाडे च हिम्मत है तो मेरे सामने आके वार करो। साहब कहते जिस दिन उन्हें जोत लेके जानी है ना, वो पिठ पिछे वार नहीं करता, सामने वार करता। दो ही टीवी बुलंदियां मलक बैठा आए, गढ़ लीता घट लुटिया, दीवड़े गया बुझाए। जाता हुआ तेरे दीवे बुझा के गया, आउंदियां दीवे नहीं बुझाए। आउंदियां तो वेख रहा सी मौत आ रही है, पर तू कर कुछ नहीं सकता। दुनिया च किन्ने डॉक्टर ने, किन्ने वैद ने। लुकमान नूं किसी ने पूछा सी, लुकमान दुनिया भर का प्रसिद्ध वैद है। लुकमान नूं किसी ने पूछा सी भी तेरे कोल मौत की किहड़ी-किहड़ी दवाई है, मौत तो बचण की किहड़ी-किहड़ी दवाई है। लुकमान खिड़खड़ा के हसिया, कहंदा तुसीं सच नहीं मनना मेरी गल दा। कहने नहीं, कहने मेरे कोल कोई दवाई नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ रखना ਹੁੰਦਾ दवाई रास आ जाती है, ਜਿਹਨੂੰ नहीं रखना ਹੁੰਦਾ दवाई मूँह 'ਚ ही पई रह जाती है। वैद कहे हऊँ ही भला, दारू मेरे बस, ए तो बस्ट गोपाल की जब पावे ले खस। मत इस शरीर ते मान करियो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ जोत ਨੂੰ पहचान लियो प्यारियो। ਉਹਦਾ शुक्र करिए ਜਿਹਦੀ जोत ਨਾਲ तेरा जीवन है। बाकी तो सारा कुछ बाद में ही कमाया। घर वड्डा हो सकता है, धन दौलत वड्डी हो सकती है, कारोबार वड्डे हो सकते हैं, वो सारा कुछ बाद में है। जिदन जोत ले गया कुछ भी नहीं पैना पल्ले, खाली तुर जाएगा। हर जोत रखी तुद विच, तां तू जग में आया। हर आपे माता आपे पिता। मैं देखिया लोग बड़े उलामे दिंदे ने, भाई गुरदास जी ने भी बड़े चुन चुन के उलामे दिते ने। उस पुरख नूं जिहड़ा माता पिता की सेवा नहीं करता। माँ प्यो पर हर सुने बीत, भीत ना जाने कथा कहानी।
माँ प्यो पर हर करे तप वनखंड भूला फिरे पिबाणी। माँ प्यो पर हर करे पूज देवी देव न सेवक मानी। माँ प्यो पर हर नहावना 68 तीर्थ घुमन बाणी। माँ प्यो पर हर करे दान बेईमान अज्ञान प्राणी। माँ प्यो पर हर करे वर्त मरमर जम्मे भरम भुलानी। गुर परमेश्वर सार न जानी। कहते माँ बापा की सेवा नहीं की, पर भलिया ऐ माँ बाप जी तू कदे भी नहीं सेवा करता। हर आपे माता आपे पिता, उदी सेवा की है, उदी आज्ञा च चलना, रब्बी आज्ञा च चलना। देखो तुसी, मैं बहुत बारी बेनती करना है अपने बच्चे को 10 डॉलर दियाँ तो मेरी मर्जी ना खर्च के ना आवे, मैं अगली बारी उन्होंने गुस्से होवांगा तो पैसे देन लग्या संकोच करांगा। रब किड्डा दयालु है, अखां नाल असीं कदों निरंकार वेखने, बेकार ही वेखने हैं, पर एक दिन भी इतराज नहीं करता। वो कदे तो मेरी दित्ती दात नूं जोग वरत लै, कदे तो मेरे हत्थां दिते हुए हत्थां नाल, कदे तो मेरे दिते पैरां नाल, कदे तो मेरी दित्ती सोच नाल सोच लै, कदे तो शुक्र कर ले मालिक दा, कदे तो धन्नवाद कर ले मालिक दा जिन्हें जोत रखी है। और ये जोत कोई रख भी नहीं सकता, कोई कट भी नहीं सकता उस तो बिना, फिर भी उन्होंने भुलाई बैठे। हर आपे माता आपे पिता, वो तो बड़ा वफादार है। माता पिता किसी के विरोधी थोड़ा होंगे नहीं। जिन जियो उपाए जगत दिखाया, जिन्हें विच जियो पाया है तां तू जगत नूं देखिया है, नहीं जगत ही नहीं सी देख होना, वो तो बिना किवें देखेगा। अगली पंक्ति बड़ी प्यारी, इनू ध्यान नाल समझियो तो बड़ा कुछ इस पंक्ति छुपिया होया। गुर प्रसादी बुझिया तन चलत हुआ, चलत नदरी आया। इस पंक्ति के 3 तरीकों आपां 3 हिस्से करके अर्थ करांगे। गुर प्रसादी बुझिया, हथ जोड़ बेनती करा, जदों भी गुरु घर आओ ना, घरों ही तुरन लगे सोच के आया करो भी मैं अज कुछ समझण चले हैं, सीखण चले हैं, गुरु कोलों लैण चले हैं। साडे मन च भावना नहीं होंदी, बुझना है, इस बुझारत नूं बुझना है, मेरे कोलों नहीं बुझी जानी। गुर प्रसादी बुझिया, जदों मैं समझी इस गल नूं तां चलत हुआ, तो एक कौतक वरतिया। चलत का मतलब है कौतक, तो मेरे जीवन च एक कौतक वरतिया। जो गुरु ने समझाया, परदा लाया भरम का, तो मेरे जीवन में एक कौतक वरतिया। ये दूजा अर्थ है। की कौतक वरतिया? चलत नजरी आया, मैनू सारा संसार कौतक ही नजर आया रब का। जिस दिन मैं गुरु को आके समझिया, गुरु ने कौतक वरता दिता, तो मैनू समझ लगी सारी दुनिया ही कौतक है। मौला खेल करे सब आपे, मैनू तो पता लगे भी मौला खेल करता, सारे आपे खेल करते, वो आपे ही खेलता है। फिर एक बारी समझियो, जेड़ा बहुत डायरैक्टर का नज़दीकी बन जाए, कोई ड्रामा खेले जा रहा है, उस डायरैक्टर का कोई बहुत नज़दीकी बन जाए, तो डायरैक्टर उन्होंने आग्ञा देंदा भी तू स्टेज के पिछे भी जा सकना है। जिथे कपड़े बदलते हैं पात्र, जिथे तैयार होंगे ने पात्र, तू उत्थे भी जा सकना। वो पिछे जाके देखता तो हैरान हो जाता भी जोड़ा इत्थे राजा है, एक भिखारी है, कमाल है, तो स्टेज पर एवं ही बड़े बैठे ने, पिछे तो सारे एक ने। पिछे वो कुर्सी पर बैठा राजा है, तो कुर्सी पर ही बैठा वो जोड़ा वो नौकर है, वो चाह कट्ठे पी रहे हैं, शक कर रहे हैं कट्ठे। तो बाहर आके देखिया वो राजा तख्ते बैठता है, तो नौकर उन्होंने जी करता फिरता है। मैनू चलत का पता लग गया, मैनू कौतक का पता लग गया, सच करके जाने हो। फिर उस दिन इन्होंने पंक्तियों के अर्थ पता लगने ने। एक दाते एक भिखारी जी, सब तेरे चोज बजाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर ना जाना। मैं तेरे तो बिना, भिखारी विच भी मैं तेनू समझना, ते राजे विच भी मैं तेनू समझना।
साडी अमीरां प्रति जिहड़ा वर्त वर्ताव है, अमीरां दे प्रति साडी बोली जिहड़ी वक्री हुंदी, गरीबां दे प्रति वक्री हुंदी है। पर याद रखियो वो मनुख जीवन में इक्को जिहा विचरदा है, क्योंकि सब दे विच इक्को ही जोत वेखदा, वो वखरेवां नहीं देखदा। उस दिन किड्डा आनंद आएगा जिस दिन सारी दुनिया रब की नजर आएगी। उस दिन उन्हें कोई भरम नहीं होएगा, अपने बेगाने की खत्म हो जानी गल। अपना बेगाना है ही उन्ना चिर है जिन्ना चिर मैं जोत नूं नहीं देखदा, ते जिन्ना चिर जोत नूं नहीं वेखदा, सब कहने बैरी बेगाने की गल हिरदे च है ना, उन्ना चिर तेरे चित्त की एकाग्रता नहीं बढ़नी। जब तारे को बैरी मीट तब लग निश्चल नाही चीत। गुर प्रसादी बुझिया तो चलत हुआ चलत नदरी आया। गुरु की कृपा नाल मैनू कौतक पता लग गया। ज्यों सुपना और पेखना, पेखना का अर्थ भी तमाशा होता है, कौतक होता है। ज्यों सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। कोई बंदा फिल्म देख रहा है तो वो कोई चलता है, इहो जिहा सीन आया जिहड़ा बड़ा दर्द भरिया है, तो बंदा रो पिया, बाहर नूं पुछण लगे भलिया तू एक निक्का जिहा कौतक देख के रो पिया। ये ना कि वो गुरु गोबिंद सिंह नूं उहदे पुत्त प्यारे नहीं सी, प्यारे सी। फिर पुत्तां पिछे अथरू क्यों नहीं बहाउंदा, क्योंकि उन्हें पता है तो दुनिया की एक फिल्म चलती है जिहदे च मैं एक पात्र है, तो एक दिन अपना पार्ट अदा करके तुर जाना, तो फिर दुख सुख किस गल का। इत्थे आके नहीं व्यापदा, इस अवस्था में हजे सानू व्यापदा है। गुर प्रसादी बुझिया तो चलत हुआ चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया। जिहदे नाल सृष्टि का मूल रचिया, इहदे कारण सृष्टि है। रब्बी ताकत दे कारण सृष्टि है। जिस दिन अपनी ताकत कढ़ लैंदा है तो उस दिन ते कहानी खत्म हो जाती है। उहदे कारण सारी सृष्टि है। सतगुरु का एक वचन कह के आप समाप्ति वाले पासे नूं आइए। खाक नूर करदन आलम दुनियाई, असमान जिम्मी दरख्त आब पैदाश खुदाई। कहते सारा कुछ उस रब ने, आटा मिट्टी का भांडा है, इनू मिट्टी के हवाले कर देना है। जिन्ना चिर जोत है उन्ना चिर ही तुरी फिरदी है, सड़ना मिट्टी भुलेखा है। कहे नानक सृष्टि का मूल रचिया। सृष्टि का मूल की है? जोत राखी, इहदे विच जोत रखी है। तां तू जग में आया, तां तू जग विच फिर रहा है, क्योंकि तेरे च रब्बी जोत है। आओ प्यारिओ, फिर वो गल कह के समाप्ति कर दईए। जिसके जी प्राण हैं क्यों साहिब मनो विसारी है। नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, विसरे सरे ना बिंद। जिस स्यों क्यों मन रुसी है, जिसे हमारी जिंद। भुल्लां दी खिमा प्यार नाल आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।